Samita is managing Namchi Designer Candles, so is a principal managing your school. They all manage organizations. Schools, hospitals, shops, and large corporations are all organizations with diverse goals that are aimed at achieving something. जैसे कि समिता नामची डिजाइनर कैंडल्स मैनेज कर रही है, वैसे ही प्रिंसिपल जो है वो हमारे स्कूल को मैनेज करता है, चाहे स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, शॉप हो, लार्ज कॉरपोरेशंस हो, ये सब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन। और इनके अलग अलग गोल्स हैं जो कि एम करते हैं कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए। नो मैटर व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन इज और व्हाट इट्स गोल माइट बी, ये मैटर नहीं करता कि ऑर्गेनाइजेशन किस चीज़ की है और उसका गोल क्या है। दे ऑल हैव समथिंग इन कॉमन, दैट इज मैनेजमेंट एंड मैनेजर्स। इन सब में एक चीज जो कॉमन है वो क्या है, मैनेजमेंट और मैनेजर्स। यू हैव ऑब्जर्व दैट Samita's work as a manager consists of a series of different activities or functions aimed at achieving the goals of organization. हमने देखा कि समिता का जो वर्क था, जो जो वो मैनेजर थी, उसमें एक सीरीज ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज आती थी, अलग अलग तरीके की वो एक्टिविटीज करती थी या फंक्शंस करती थी, जिसमें वो एक गोल को अचीव करने की कोशिश करती थी। These interconnected and interdependent functions are part of management. ये सारे interrelated और interdependent जो functions है management के, functions है, ये part है management के। Successful organization do not achieve their goals by chance but by following a deliberate process called management. एक जो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो अपने आप ही ऐसे इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन जाती, इतना वो सक्सेस हासिल नहीं कर लेती अपने आप ही। वी हैव टू डेलिबरेटली डू दैट डू थिंग्स सो दैट वी कैन अचीव सक्सेस। जानबूझकर हमें प्लान्स बनाने पड़ते हैं टू अचीव द स्पेसिफिक गोल, एंड दैट्स हाउ वी गेट सक्सेसफुल, यू नो। डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस दी गई है मैनेजमेंट की। Management is a process of designing and maintaining an environment in which individuals working together in groups efficiently accomplish selected aims. मैनेजमेंट एक प्रोसेस है डिजाइन करने का और मेंटेन करने का, एक एनवायरनमेंट इन विच, जिसमें इंडिविजुअल्स ग्रुप में काम कर सके एफिशिएंटली, ताकि वो अपने एम्स को अचीव कर सके। Management is defined as a process of planning, organizing, actuating, and controlling an organization's operation in order to achieve coordination of human and material resources essential in effective and efficient attainment of objectives. Management को हम किससे define करते हैं? Planning, organizing, actuating, or controlling. These are all functions of management which we will be studying in the following chapters. We have different chapters on these topics also, so we will study these in detail, then you will be able to understand them in a more better way, you know. Management is a process of working with the thorough uh, sorry working with and through others to effectively achieve organizational objectives by efficiently using limited resources in changing environment. Management is essential for all organization, big or small, profit or non-profit, service or manufacturing. Management is necessary so that the individual make their best contribution toward group objectives. Management बहुत ज़रूरी है organization के लिए, चाहे वो बड़ी organization हो या छोटी organization हो, वो profit motive organization हो या non profit motive organization हो, वो services में deal करती हो या फिर वो manufacturing करती हो। मैनेजमेंट नेसेसरी है, बहुत ज़रूरी है, ताकि इंडिविजुअल्स जो हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग हैं, वो उनका जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है वो उसको अचीव कर सकें। मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ इंटररिलेटेड फंक्शंस that are performed by all managers. मैनेजमेंट एक इंटररिलेटेड फंक्शन से बनी हुई है जो सारे के सारे मैनेजर्स परफॉर्म करते हैं। Later in this chapter, you will understand that although both of them are managers, they function at different levels in the organization. The time spent by managers in different functions, however, is different.
Managers at the top level spend more time in planning and organizing than the managers at the lower level of organization. पता है एक डायग्राम होता है, यहाँ पे आते हैं, this is a triangular diagram in which top level, middle level and lower level. So top level की जो managers होते हैं, they have to plan so much, they have to plan everything, like उनको हर चीज़ plan करनी होती है कि नीचे अपने जो मिडिल लेवल के वर्कर्स हैं उनसे क्या क्या काम कराना है। एंड मतलब जो ऊपर वाला जो होता है ना, टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है, वो ज़्यादातर सिर्फ प्लानिंग करती है, और मिडिल लेवल उससे कम प्लानिंग करती है एंड लोअर लेवल उससे कम प्लानिंग करती है। सो एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज different and they perform the functions इन देयर रिस्पेक्टिव वेज। मतलब कोई कोई फंक्शन ज़्यादा परफॉर्म करता है, कोई कोई फंक्शन कम परफॉर्म करता है, बट everyone is performing every function of management. Okay, concept. Management is a very popular term and has been used extensively for all types of activities and mainly for taking charge of different activities in any enterprise. Management is a very popular term and has been used extensively for all types of activities and mainly for taking charge of different activities in any enterprise. Management एक बहुत popular term है और ये बहुत जगह जगह यूज होती है और काफ़ी types of activities के लिए यूज होती है। एक enterprise में, as you have seen from above example and case study, that management is an activity which is necessary wherever there is a group of people working in an organization. जब एक group of people एक organization में काम कर रहा होता है तो management की ज़रूरत पड़ती है। People in organization are performing diverse tasks but they are all working towards the same goal. एक organization में हर जो इंसान है वो अलग अलग टास्क परफॉर्म कर रहा है लेकिन उनका गोल एक ही है। मैनेजमेंट एम्स एट गाइडिंग देयर एफर्ट टुवर्ड अचीविंग अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट हमको एम कराती है, हमारा गोल जो है वो एक ही रहे, हमारा एक कॉमन ऑब्जेक्टिव हो। अ गोल a goal thus management has to see that tasks are completed and goals are achieved. This is effectiveness with the least amount of resources at minimum cost. This is efficiency. एक मैनेजमेंट को देखना पड़ता है कि जो उसके रिसोर्सेज हैं वो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली यूज हो रहे हैं और उनके गोल्स भी अचीव हो रहे हैं इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैनेजमेंट हैज देयरफॉर बीन डिफाइंड एज अ दिस इज इम्पोर्टेंट। ओके, यहाँ पे मैनेजमेंट की डेफिनेशन दी गई है। व्हाट इज दिस, व्हाट इज इट? a process of getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently. यहाँ पे हमें क्या, अब जो है मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम अपना जो हमारा एम क्या रहता है कि हमारे गोल्स जो है वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हम अचीव कर पाए। अब यहाँ पे प्रोसेस का मतलब क्या है, फिर इफेक्टिवली का मतलब क्या है, एंड व्हाट इज एफिशिएंटली। हमें इन तीन टर्म्स का मीनिंग अभी पता करना है। तो यहाँ पे respectively they have given the meaning and explained everything. So I'm reading. A process in the definition means primary functions or activities that management perform to get things done. These functions are planning, organizing, staffing, directing and controlling, which we will discuss later in the chapter and the book. So process का मतलब इससे है कि they have to perform the functions in a series, in a process. You know, these functions are interrelated. they तो इन्हें क्या परफॉर्म करना होता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग के ऊपर हमारे पास पूरे पूरे चैप्टर्स हैं। सो वी विल डिस्कस दीज टर्म्स in those chapters. Okay, being effective or doing work effectively basically means finishing the given task. uh, जब हम effectiveness in the management is concerned with doing the right task, completing activities and achieving goals. In other words, it is concerned with the end results.
जब हम इफेक्टिवनेस की बात करते हैं तो हम, अगर हमें कोई टास्क मिला है एंड वी आर गिवन विद अ टास्क एंड वी हैव अ डेडलाइन कि हमें ये टास्क इस टाइम तक खत्म कर लेना है, तो हम डेडलाइन पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि हमारा टास्क उस टाइम तक खत्म हो जाए। हम ये फोकस नहीं करते कि हमारे रिसोर्सेज कम यूज़ हो, हमारे जो हम जो रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं वो एफिशिएंटली यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा उनका यूज़ करें हम। तो जो बीइंग इफेक्टिव और डूइंग वर्क इफेक्टिवली का मतलब क्या है? फिनिशिंग द गिवन टास्क। हम कंसर्न किस पे करते हैं? फिनिशिंग द गिवन टास्क इज आवर मेन कंसर्न, ठीक है? हमारा एंड गोल पे ज़्यादा ध्यान रहता है। इफेक्टिवनेस इन मैनेजमेंट इज कंसर्न विद डूइंग द राइट टास्क, अपना टास्क करना, राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज एंड अचीविंग गोल्स। जो अगर एक्टिविटी मिली है तो देन वी हैव टू डू दैट एक्टिविटी, या फिर कोई गोल अकॉम्प्लिश करने के लिए मिला है, अचीव करने के लिए मिला है, तो वी हैव टू अचीव दैट गोल। इन अदर वर्ड्स, मैंने बोला था ना, इट इज कंसर्न विद एंड रिजल्ट। जो एंड में रिजल्ट आएगा, इट इज कंसर्न विद ओनली दैट. But it is not enough to just complete the task. There is another aspect also. This is being efficient, or as we say, doing work if efficiently. लेकिन effectiveness से काम नहीं चलेगा. We have to be efficient also. ठीक है? Efficiency means doing the task correctly and with minimum cost. efficiency का मतलब क्या है कि एक टास्क को सही ढंग से करना और कम से कम कोस्ट में करना. There is a kind of cost benefit analysis involved in relationship between inputs and outputs. यहाँ पे एक cost benefit का benefit analysis होता है. यहाँ पे बचत ज़्यादा से ज़्यादा की जाती है inputs और outputs में. If by using less resources, this is inputs, अगर हम कम resources यूज़ करेंगे, अगर हम कम input यूज़ करेंगे, हमारा raw material कम यूज़ होगा, more benefit are derived. हमारा जो benefit होगा, मतलब profit होगा, वो ज़्यादा आएगा. Sorry, यहाँ पे profit नहीं था. more benefit are derived, this is output. अगर हम कम resources यूज़ करेंगे, मतलब कम, oh, sorry, less resources. This is input, more efficient, more benefit are derived. This is the output. Then efficiency has increased. Okay. अगर हम कम सामान में कम रॉ मटेरियल में ज़्यादा सामान बनाएंगे, तो हमारी इससे क्या बढ़ रही है? एफिशिएंसी बढ़ रही है. हमारा कॉस्ट बोल रही हूँ, कॉस्ट कम आ रहा है एंड वी आर एफिशिएंट. हम मिनिमम कॉस्ट में काम कर रहे हैं और सही ढंग से काम कर रहे हैं. वी आर डूइंग दैट टास्क करेक्टली. Efficiency, आगे बढ़ते हैं. Efficiency is also increased when for same benefit or outputs, fewer resources are used and less costs are incurred. Are uh, input resources are money, material, equipment. Okay, यहाँ पे जो ये तो मैंने बता दिया. इनपुट रिसोर्सेज का एग्जाम्पल दिया हुआ है इन्होंने, जैसे कि मनी. हम जो रिसोर्सेज लगा रहे हैं, मैंने रॉ मटेरियल का एग्जांपल दिया था इन द अबव. यहाँ पे ये किसका एग्जांपल दे रहे हैं? इनपुट रिसोर्सेज में हमको मनी, मटेरियल, इक्विपमेंट एंड इनपुट रिसोर्सेज में हम क्या पढ़ रहे थे? मनी, मटेरियल, इक्विपमेंट, पर्सन रिक्वायर्ड टू अ पर्टिकुलर टास्क. तो ये हमारे मनी, इनपुट रिसोर्सेज हो गए. ऑब्वियसली द management is concerned with efficient use of these resources because they reduce cost and ultimately lead to higher profit. जो मैनेजमेंट होती है वो इन सब का जो एफिशिएंट यूज करती है रिसोर्सेज का, क्योंकि एफिशिएंट यूज रिसोर्सेज का कॉस्ट रिड्यूस करता है और हायर प्रॉफिट्स जनरेट करता है. अगर हमारी आउटपुट बनाने की कॉस्ट कम होगी, तो हमारा जो प्रॉफिट होगा वो इंक्रीज होगा. ओके. Efficiency versus effectiveness versus efficiency, these two terms uh, are different but they are interrelated. ये जो दोनों terms हैं, इनका मैंने different meaning बताया ऊपर ऊपर, लेकिन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये जो दोनों terms है ये different है, लेकिन ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है. मतलब एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता, दूसरे के बिना
पहला नहीं सकता। फॉर मैनेजमेंट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी बोथ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। एक मैनेजमेंट को इफेक्टिव और एफिशिएंट होने की दोनों की ज़रूरत पड़ती है। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आर टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी एक सिक्के के दो पहलू हैं, but these two aspects need to be balanced, and management at times has to compromise with efficiency. ये जो दोनों एस्पेक्ट्स है, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, इनको बैलेंस करते हुए चलना पड़ता है, लेकिन कभी कभी मैनेजमेंट को एफिशिएंसी के साथ जो होना थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ ईजियर टू बी इफेक्टिव एंड इग्नोर एफिशिएंसी। दिस इज क्योंकि इफेक्टिव होना बहुत ईजी है ना, और एफिशिएंसी को हम आसानी से इग्नोर कर सकते हैं। दिस इज जैसे कि कंप्लीट द गिवन टास्क बट एट द हाई कॉस्ट। Suppose a company's target production is 5,000 unit in a year. To achieve this target, the manager has to operate on double shifts due to power failure most of the time. तो 5,000 यूनिट्स बनाने हैं एक प्रोडक्शन यूनिट को। यहाँ पे प्रोडक्शन कंपनी को यहाँ पे एक 5,000 यूनिट्स बनाने हैं। यहाँ पे जो पावर फेलियर की वजह से मैनेजर्स को डबल शिफ्ट लगानी पड़ रही है। द मैनेजर इज एबल टू प्रोड्यूस 5,000 यूनिट्स बट एट अ हायर प्रोडक्शन कॉस्ट। अब जो मैनेजर है वो उसने 5,000 यूनिट प्रोड्यूस तो कर लिए, लेकिन जो कॉस्ट आया वो ज़्यादा आया। इन दिस केस द मैनेजर वॉज इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट। इस केस में जो मैनेजर है वो इफेक्टिव है लेकिन एफिशिएंट नहीं है। Since for the same output more inputs, labor cost, electricity cost were used, क्योंकि उतने ही सामान को बनाने के लिए हमें इनपुट्स रिसोर्सेज की ज़्यादा ज़रूरत पड़ी है। जैसे कि लेबर ज़्यादा लगा है, यहाँ पे लेबर कॉस्ट ज़्यादा लगी है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट ज़्यादा लगी है। एट टाइम्स अ बिजनेस में कॉन्सेंट्रेट more on producing goods with fewer resources. This is cutting down cost but not achieving the target production. लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम एफिशिएंट हो जाते हैं क्योंकि जो बिजनेस है वो अपनी कॉस्ट तो कट कर देता है, अपने रिसोर्सेज तो इनपुट रिसोर्सेज अच्छे से तो यूज़ कर लेता है, बट वो जो अपने टारगेट्स होते हैं वो उनको सही टाइम पे मीट नहीं कर पाते। reach the Consequently the goods do not reach the market, and hence the demand for these for them decline and competitors enter the market. और इसका परिणाम क्या होता है, जो गुड्स होते हैं वो मार्केट में नहीं पहुंच पाते, जिसकी वजह से डिमांड कम हो जाती है। और जो कॉम्पिटिटर होता है, हमारी मार्केट में कॉम्पिटिटर भी होगा ना, तो कॉम्पिटिटर जो होता है वो एंटर कर जाता है मार्केट में। दिस इज द केस ऑफ बीइंग एफिशिएंट बट नॉट इफेक्टिव। अब ये केस किसका था, हम यहाँ पे एफिशिएंट थे लेकिन इफेक्टिव नहीं थे, हमने सही टाइम पे काम पूरा नहीं करा। Therefore, it is important for management to achieve goals, effectiveness with minimum resources, effective efficiently as possible by maintaining a balance between effectiveness and efficiency. Usually, high efficiency is associated with high effectiveness, which is the aim of all managers. But undue emphasis on high efficiency without being effective is also not desirable. Poor management is due to both inefficiency and ineffectiveness. अब वो वही कहना चाह रहा है कि हमें तो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को साथ में लेकर चलना है, इनको बैलेंस बना के चलना है। Usually higher efficiency is associated with higher effectiveness, which is the aim of all managers. यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मैनेजमेंट। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट की। आफ्टर गोइंग थ्रू सम ऑफ द डेफिनेशंस वी फाइंड सम एलिमेंट्स that may be called the basic characteristics of management. यहाँ पे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है, एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। एन ऑर्गेनाइजेशन हैज अ set of basic goals which are the basic reason for its existence. एक ऑर्गेनाइजेशन के कुछ बेसिक गोल्स होते हैं जो उसकी एग्जिस्टेंस का भी एक रीजन होते हैं। वो है ही क्यों वो ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे है क्यों, इट इज़ फॉर अ गोल। तो मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। एंड आगे बढ़ते हैं वैसे,
These should be simple and clearly stated. और ये जो goals है ये simple होने चाहिए और clearly stated होने चाहिए. A different organization have different goals. अलग अलग organization के अलग अलग goals होंगे. For example, goals of a retail store may be to increase sale. एक retail store होता है, उसका जो goal होगा हो सकता है वो sale को increase करना हो. But the goal of the Spactus Society of India is to impart education to children with special needs. Management unites the efforts of different individuals and organizations toward achieving these goals. Management unite करती है अलग अलग लोगों के efforts को, ताकि हमारा जो organization है उसका goal achieve हो सके.